Okay. Hi everyone. Again, welcome to all of you. Today, last day for revision of your half-yearly examination of class 9th standard. Okay. So already one question mentioned on the green board. Here, this is the related to mensuration question, surface area and volumes of solid figures. Okay. Solid figure means that is cube, cuboids, cone, sphere, etc. etc. Okay. So this is class 9th standard. Yes. Question says the height of a cone is 16 centimeter and its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and total surface area of the cone. Very simple. इस क्वेश्चन में से कोई कंडीशन स्पेशल नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ cone. Okay, this is O, A, B, C. So A, B, C is a cone and OA is the height of cone and OC is the radius of the cone and AC is slant height of the cone. Understood? तो एक तरीके से ये हमारी कंडीशन क्या हुई and this is right angle triangle 90 degree because BC is the perpendicular to AO in this figure. ठीक, तो इसीलिए एक जो पर्टिकुलर हाइट परपेंडिकुलर चीज थी वो हाइट हो गई और जो आपके पास बेल्ट हाइट थी तिरछी ऊंचाई जिसको कह सकते हैं वो स्लैंट हाइट हो गई. ओके, तो इस कोण के बिहाफ में क्वेश्चन क्या दिया है? द हाइट ऑफ अ कोण इज 16 सेंटीमीटर. तो अपने अपने प्लेस पे इसकी वैल्यू शिफ्ट कर दिए 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर. सो OC is 12. OC is 12 centimeter. Find the curved surface area of the this figure. Simply okay. Solution. According to figure, it can be observed that find the curved surface area of cone. Okay. According to figure, it can be observed that CSA of given cone is equal to pi r l. Understood? So here pi r l, value of pi using in this question, so given 3.14. okay, so 3.14 into this is the radius of the cone is 12 and here slant height. So what is the formula of slant height in this figure? This is the right angle triangle COA using the Pythagoras theorem. This is AC is hypotenuse, AO perpendicular and OC is base. So L square is equal to H square plus R square, then L is equal to under root H square plus R square. So here L is equal to under root H square. What is S? 16 square and plus R square. R means 12 square. ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा स्लैंट हाइट के इक्वल आएगा. सो अगेन 3.14 को सॉल्व करने के लिए रिप्लेस द डेसिमल. सो 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12 इन द अंडर रूट 16 स्क्वायर 256 एंड 12 स्क्वायर 144. तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज कितनी मिल जाएगी हमारी? अगेन 314 into 12 upon 100 into 6 4 10 is 0 carry 1 5 4 9 0 carry 1 2 1 3 4 under root 400. so under root 400 हम क्या लिख सकते हैं? 20. so 314 into 12 upon 100 multiply by square root of 400 is 20. so 0 0 cancel out. 2 1s are 2 2 5s are 10. तो हम इसको 10 कैंसिल नहीं करते हैं, हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा. हम इसको 2 सेव करते हैं
और 10 को सेफ रहने देते हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या हो जाएगी हमारे लिए फाइनली कि 12 को हम 314 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 314 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 1 जा 12, 12 4 16 के 6 कैरी 1, 12 3 जा 36 and 1 37, right? 3 7 6 8, right? So again 3 7 6 8 multiply by 2, multiply by 2, 2 8 16 के 6 carry 1, 2 6 12 13 carry 1, 2 7 14 15 carry 1, 2 3 6 7 5 3 6, simply so 7 5 3 6 upon 10, डायरेक्टली हमारा सिर्फ 1 डिजिट बिफोर डेसिमल सेटअप कर देंगे। 575 all the dimension in centimeter, so centimeter square, okay. Therefore curved surface area of the cone is 753.6 centimeter square. This is the right answer, okay. And now total surface area of the cone, total surface area of the cone, इस वैल्यू को सेव करके रेस्ट पोर्शन रख करते हैं, ओके। बिकॉज ये वैल्यू हमारी यूज होगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन में। अकॉर्डिंग टू फिगर टीएस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू व्हाट? टोटल सरफेस एरिया में क्या काउंट होगा? ये आपने कर्व सरफेस एरिया निकालना है, CSA ऑफ कोन प्लस उसमें क्या पोर्शन बच गया हमारे पास? बेस रिंग, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो सिंपली कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 753.6, अगेन एरिया ऑफ बेस मींस सिंपली पाई आर स्क्वायर, 753.6 pi r square is again pi 3.14 given in this question, and area base radius r stand to radius is given, तो 12 का स्क्वायर कितना कर देंगे हम लोग? 144, अगेन 314 को हम 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हम उसको ऐड करेंगे, जो आएगा हम उसको सिंपली ऐड करेंगे। तो 314 मल्टीप्लाई बाय 44, तो 753.6, इसका प्रोडक्ट आपको मिलेगा 452.16 सिंपली, फिर दोनों में बीच का एडिशन है, तो 753.6 को 0 मेंशन कर देते हैं, 6 0 6 1 6 7 2 3 5 5 5 and 0 carry 1 5 7 12 1205.76 centimeter square. Total surface area of the cone is 1205.76 centimeter square. This is the both answer of this given question, children. Okay, so note the solution part, and I'm going to next question. Okay, children, next question. Find the volume of a sphere of radius 12.2 centimeter simply. This is the 1 marks question. Okay, so directly apply the formula, then solve it. So we got the answer. Like find the volume of a sphere of radius. So radius small r is equal to 11.2 centimeter is given. Then since volume of sphere is equal to what? 4 by 3 pi r cube. Volume of sphere 4 by 3 pi r cube. ये क्यूबिक पार्ट है, ओके। तो ये हमारी हेल्प करता है, क्यूब हमको कहाँ पर रिलेट करता है? वॉल्यूम से रिलेटेड, बिकॉज यूनिट इज क्यूबिक सेंटीमीटर
सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 4/3 पाई आर क्यूब इस तरह से माइंड में हो जाएगा। देन 4/3 इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ पाई सिंपली 22/7 एंड रेडियस 11.2 11.2 11.2। So 4 7 22 3 not possible. Replace the decimal. Okay, तो रिप्लेस द डेसिमल के बाद कोई कंडीशन बच रही है। 7 1 7 7 4 28 नॉट पॉसिबल। 3 के टेबल से 3 3 9 3 3 9 22। कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सिंपली कट ऑफ। कोई भी ऑप्शन नहीं, सिंपली यहाँ हमारा कट ऑफ। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए फाइनली अब यही है आपके सामने ऑप्शन कि इस 10 को लेके चलना हमारे लिए यूजफुल होगा कि जो लास्ट का आंसर आएगा उसमें हम 3 डिजिट बिफोर डेसिमल सेटअप कर देंगे। 3 डिजिट बिफोर डेसिमल सेटअप कर देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसका सॉल्व सॉल्यूशन लेते हैं तो 5 8 8 7.5887 3 2। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन पार्ट होगा। फाइनली इसमें आपको करना ही पड़ेगा। इसमें कोई और ट्रिक फॉलो नहीं हो पा रही है, डायरेक्टली कोई भी डिजिट नहीं कट रही है, बस सिंपली हमारे पास 2 5 2 5 2 5। अगर हम 5 5 में आएंगे तो हमको न्यूमरेटर पार्ट को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो टफ टास्क हो जाएगा। सिंपली 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 88 88 मल्टीप्लाई बाय दिस पोर्शन एंड डिवाइडेड बाय 7 इज 21। जो आएगा उसमें फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना 3 डिजिट बिफोर डेसिमल सेटअप कर देंगे। तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब आंसर सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, तो अब इसमें बहुत ही प्रिकॉशन लेकर के आपको कैलकुलेशन करना है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी सिंगल कंडीशन कट ऑफ नहीं हो रही है, कोई भी सिंगल कंडीशन कट ऑफ नहीं हो रही है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन की वैल्यूज में कोई ऐसा ट्रिक नहीं था, सिर्फ दिस इज द कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, so pause the video and come to the next question. Okay children, this is the next question. So firstly read this question. A shot put is a metallic sphere, sphere means solid object, of radius 4.9 centimeter if the density of मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो अप्रॉक्सीमेट है वो 7.8 ग्राम है। देन फाइंड द मास ऑफ शॉर्ट पुट, टोटल शॉर्ट पुट निकालना है। तो फाइनली यहाँ पर इस क्वेश्चंस में हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड टाइटल यूज हुआ, मास से रिलेटेड टाइटल यूज हुआ। तो फाइनली वी नो दैट बिकॉज यहाँ जो मेटालिक स्फीयर होगा, जो शॉर्टपुट का शेप होता है क्या है, मेटालिक स्फीयर है। तो मेटालिक स्फीयर हमारे लिए क्या है, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर को सॉल्व करने के लिए वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो फाइंड द मास ऑफ द शॉर्टपुट, short put. So by the cross multiplication, mass is equal to density into volume. तो मास को फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। बट डेंसिटी इज गिवन, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड वॉल्यूम नॉट डिफाइंड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। डेंसिटी पार्ट गिवन है, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर। अंडरस्टूड? तो इधर सॉल्व कर लीजिए। सो हियर अगेन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या मेटालिक ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube. 4/3 is a constant, pi value
22/7. And what is the radius of sphere? This radius of this 4.9 into 4.9 into 4.9. We place the decimal again. हमारा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है. 7 मतलब 7 7 7 मतलब 49 सिंपली कैंसिल हो गया. फर्दर कोई वैल्यू हमारी और कैंसिल नहीं हो पा रही है. 3 के टेबल से 49 पॉसिबल नहीं है कट पाए. सिर्फ 4 के टेबल से ये हम 5 मेंशन कर सकते हैं, बट कोई हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा. तो डायरेक्टली क्या करना चाहिए हमको? 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मींस 88 into 7 into 49 into 49 and total upon 3 और सेपरेटली तरीके से इसको 1000 लिखते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में जो भी हमारे पास नंबर्स या वैल्यूज आएगी हम उसको 1000 से डायरेक्टली ओरल डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो 7 8 the 56 6 carry 5 7 8 the 56 56 5 60 1616 into 49 again 49. ओके, तो इसके प्रोडक्ट भी हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स आंसर हम इसका लेके चल रहे हैं. ठीक है, 616 49 49 अपॉन 3 into 1000. सो इसका जो आपका आंसर अप्रॉक्स आएगा 493 पॉइंट समथिंग में लीजिए, अदरवाइज 493 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स. तो 493 जो वैल्यू निकली है ये क्या निकली है? वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर. तो जब वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर फाइंड हो जाएगा तो हमको निकालना है फाइंड द मास ऑफ द मेटालिक स्फीयर या फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट. तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ फाइंड द मास ऑफ शॉर्ट पुट इज इक्वल टू डेंसिटी. तो हमारे पास दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 7.8 ग्राम. तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? सिंपली 7.8 मल्टीप्लाई बाय 493. तो 7.8 मल्टीप्लाई बाय 493 तो जब हम मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्स आंसर हम ले जा रहे हैं 3845.44 ग्राम. तो मास ऑफ द शॉर्ट पुट इज इन ग्राम 3845.44 ग्राम. इस ग्राम को अगर हमको केजी में कन्वर्ट करना हो तो हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो जब हम इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3. तो 3 डिजिट बिफोर हम लोग अपना डेसिमल सेटअप कर दें 3.84 किलोग्राम अप्रॉक्स. ओके, तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग ने एटलीस्ट आज तक की वीडियो में मोस्टली क्वेश्चंस को रिवाइज किया है, रिकैप किया है, अपने ब्रेन को वॉश किया है. फाइनली ये सारी चीज़ें आप अपने कमिंग एग्जामिनेशन में विथ कॉन्फिडेंस यूज कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड फॉर बेस्ट ऑफ लक योर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन. थैंक यू.